Ladies and gentlemen, this is our top lead. Yesterday, we had shown a light on how patriarchy and power in Haryana is protecting a minister accused of sexually harassing a woman who worked under him. The minister is Sandeep Singh, a former captain of the Indian hockey team. He was the sports minister and she a junior coach. The power disbalance was a teller, and it has reflected in the way the Haryana government has responded, or rather not responded, to the case. The minister was protected and defended. The victim was discredited as an opposition plant and suspended from her job. The Chandigarh police filed a 700-page charge sheet calling out the minister. They said he had been dishonest and he had refused to take a lie detector test. They said there was digital and forensic evidence to show that the minister and the victim knew each other well, contradictory to his claim. But the Khattar government hasn't budged on Sandeep Singh. They say he's an Olympian, a man who has brought glory to India, that he is innocent until proven guilty. Sure, I'm not judge, jury and executioner. Let a court of law decide if Sandeep Singh is guilty or not. But Mr. Khattar, if Sandeep Singh is an Olympian who has brought glory to India, so have Sakshi Malik and Vignesh Phogat. How come you didn't step in to defend women from your own state when they made allegations of sexual assault against your party MP Brij Bhushan Saran Singh? Mr. Khattar, your hypocrisy and patriarchy is as clear as daylight. And now the victim is herself speaking out and telling the world about how you took a personal interest in hushing up the case, how you offered her an election ticket to drop charges, how Sandeep Singh, the man you are protecting, offered her hush money. Shikha Dagar is joining us live on the show. Shikha, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी लड़ाई जो है कठिन रही है, लेकिन आप लड़ाई को लड़ ही रही हैं. आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने आज एक बहुत एक्सप्लोसिव क्लेम किया है शिखा. आप कह रही हैं कि आपसे कहा गया आप केस वापस ले लें. आपसे किसने कहा कि आप केस वापस ले लें और किसने आपको क्या क्या ऑफर किया, आप हमें बताइए. जी, पहले थैंक यू सो मच मैम, मुझे अपने शो में अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए, क्योंकि आप एक इकलौता चैनल हैं जिन्होंने एक विक्टिम को, एक नॉर्मल लड़की की बात सुनी और एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसे मुद्दे को उठाया. जबकि यहाँ ये लड़ाई लड़ते हुए मुझे पूरे 8 महीने अकेले निकल चुके हैं. कोई मीडिया परसेप्शन आके मेरी इस लड़ाई में मेरी ऐसी मदद नहीं की जैसे आपने इसकी पहल की. तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम. एक्चुअली मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहती हूँ कि जितना भी मेरे पे प्रेशर कराया जा रहा है, चाहे वो मुझे मारने की धमकी से लेके पैसे के ऑफर, ये सब पहले संदीप सिंह करवा रहे थे. इनके जो कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने काफी बारी पैसे का ऑफर, चंडीगढ़ में गाड़ी और घर का ऑफर और विदेश सेटल होने का ऑफर, और मैं जितना मर्जी इनसे पैसा डिमांड करूं ये मेरी सारी शर्तें कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं शिकायत वापस नहीं. तो ये सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी चंडीगढ़ पुलिस में दे चुकी हूँ. और अभी जो रिसेंट जो चीजें चल रही हैं केस वापस लेने की, ये देखिए आज भी जैसे ही मैंने आपके चैनल को एक इंटरव्यू देने के लिए मैं आई थी, आज भी मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है. और आज पहली बार ऐसे हुआ है कि मैंने उस इंसान की प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग की है पूरा वीडियो के तहत. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे जो हरियाणा के जो सीएम हैं और संदीप सिंह हैं, ये इनके थ्रू ये सारी चीजें मेरे पे करवाई जा रही हैं. जी, exactly. I don't know what is the nexus between CM and Sandeep Singh. Why he is always trying to protecting him and protecting and shielding him. Yeah. तो शिखा, मुझे एक बात बताइए, आपने ये भी कहा है कि आपको इलेक्शन टिकट, एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए भी टिकट ऑफर हुआ है. ये किसने ऑफर किया है? ये आपको क्या चीफ मिनिस्टर खट्टर ने खुद ऑफर किया है? उन्होंने आपसे मिलने की कोई पहल की है? इसके बारे में कुछ बता सकेंगी? जी, एक्चुअली अभी जैसे ही संदीप सिंह के अगेंस्ट मैंने जो एफआईआर की थी, उसके तुरंत टाइम के बाद एक डिप्टी डायरेक्टर आती
हैं संदीप सिंह के जो प्रेस वाले हैं उनके ही जगह पे वो पीसी करते हुए, उनके साथ में एक अभी जो करंट कुछ 2-3 दिन पहले ही एक डीएसओ यहाँ पे आई है और वो उस पीसी में भी अवेलेबल थी। तो 3 दिन पहले उन्होंने मेरे ऑफिस में, डीएसओ ऑफिस में, अभी करंट वो डीएसओ हैं यहाँ पे, और उन्होंने मेरे मुझे गले लगाते हुए मुझे ये चीज बोली है कि आप जो भी चीजें गई आप उनको मिट्टी डालिए और आप एक नई अच्छी शुरुआत कीजिए। मैं आपकी एक बड़ी बहन हूँ, आप ऐसे। और उस टाइम उन्होंने मुझे बोला कि मैं सीएम सर के साथ जो भी इश्यूज हैं वो पर्सनली ना लूं और उनको कहीं पे भी टारगेट ना करूं। साथ ही उन्होंने मुझे बोला है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ अगर मैं सारी चीजें नॉर्मल कर लेती हूँ तो वो मुझे अपना बीजेपी में अभी करंट टिकट देने के लिए तैयार हैं जी। और जैसे ही मैंने अपने फोन से कैमरा निकाला, क्योंकि ये वॉशरूम की बात है, बीएसओ रूम के अंदर जो वॉशरूम है, तो तुरंत मैं बाहर आई, मैंने फोन से कैमरा निकाला है एंड उसके बाद शी वाज टोटली साइलेंट जी। तो शिक्षा, मुझे ये बताइए कि कुछ हफ्तों पहले आपको सस्पेंड भी कर दिया गया है। कल बीजेपी के एक प्रवक्ता थे जो हमारे शो में आए थे और उन्होंने कहा, देखिए, आप शिक्षा के सस्पेंशन को केस से मत जोड़िए, इससे केस का कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षा का सस्पेंशन इज अ केस ऑफ इनडिसिप्लिन। क्या आप मानती हैं कि आपका सस्पेंशन इज लिंक्ड टू द फैक्ट कि आपने ये केस वापस लेने से मना कर दिया है? एग्जैक्टली मैम, क्योंकि जो स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है उनसे मेरे पे डायरेक्ट प्रेशर बनवाया जाता था कि मैं सीएम से पर्सनली मिलूं और कहीं पे भी मैं उनके लिए कोई ऐसी बात ना करूं। सो बीइंग ए विक्टिम, अगर मैं, मेरे लिए अगर कोई भी अपोजिशन से लेके अगर कोई सिंगल पर्सन मेरी हेल्प के लिए नहीं आ रहा है तो मैम मुझे, मेरे लिए, मैं एक बीइंग ए विक्टिम, मेरे अपने सारे राइट्स हैं। लेकिन इसमें मैंने कोई अनडिसिप्लिन नहीं किया। जो खेल विभाग के जो करंट डायरेक्टर है, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने सीएम को खुश करने के लिए मुझे विदाउट एनी नोटिस, उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही मुझे आज तक 25 दिन हो चुके हैं, मुझे कोई रीजन नहीं दिया है कि मुझे सस्पेंड क्यों किया गया है। तो ये सीधा सीधा उन्होंने सीएम सर के या जिस किसी के भी इशारे पे उन्होंने मुझे डायरेक्ट सस्पेंड किया है, ना ही कोई इंटीमेशन लेटर दिया। 25 दिन हो चुके हैं और ये डायरेक्ट मेरे पे प्रेशर बनाया गया था कि या तो मैं ये कंप्लेंट वापस लूं, पीछे हट जाऊं, अदरवाइज मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और मैंने उनको उस टाइम क्लियरली बोल दिया था कि मेरा जब स्पोर्ट्स दांव पे लग चुका है तो जॉब स्पोर्ट्स से ज्यादा नहीं है। और मैंने क्लियरली उनको साफ तौर पे मना कर दिया। और जैसे ही मैंने एक 15 अगस्त के नियरेस्ट मैंने जाके एक सीएम जी से मिलने के लिए एक सवाल उठाने की कोशिश की कि बीइंग ए विक्टिम, मैं इतने टाइम से इतना कुछ सफर कर रही हूँ और वो संदीप सिंह से झंडा फहराने के लिए वो हमारे तिरंगे का कैसे इतना अपमान कर सकते हैं। जब तक चार्जशीट या फैक्ट क्लियर नहीं हो जाते, किसी को भी अधिकार नहीं है हमारे तिरंगे का अपमान करने का। तो उस चीज के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट मुझे सस्पेंड करवा दिया। उसके सेम उसी दिन 11 तारीख को उन्होंने मुझे सस्पेंड करवाया और जबकि 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 की रात को मुझे सस्पेंशन लेटर दिया जाता है। और आज तक ठीक उसके 2 दिन के बाद 16 को मैंने उनसे अपना जवाब मांगा कि किस बेसिस पे डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स ने मुझे सस्पेंड किया है, बिकॉज आई नीड टू नो कि रीजन क्या है। और उन्होंने उसमें कोई रीजन मेंशन ना करते हुए आज तक मुझे कोई जवाब फाइल नहीं किया है जी। शिक्षा, बार बार खट्टर सरकार के जो लोग आ रहे हैं शो में, बोल रहे हैं कि शिक्षा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं कि संदीप सिंह ने उन्हें हश मनी देने की कोशिश की, उनसे कहा कि जितने पैसे चाहिए ले लो, अब्रॉड सेटल हो जाओ। चीफ मिनिस्टर ने अपने लोगों को भेजा उसको इलेक्शन टिकट देने के लिए कि साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ, इस मुद्दे पे बात मत करो, अपना केस वापस ले लो। तो शिक्षा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं, क्या उनके पास इस सब के लिए प्रूफ है? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपके पास इस सब के लिए प्रूफ है? क्योंकि अल्टीमेटली मैम मामला कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, चार्जशीट है, जी मामला कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, उसके लिए प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जी, एग्जैक्टली मैम, यू आर राइट एंड आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट व्हाट यू वांट टू से। बट द फैक्ट इज कि जिन्होंने मुझे पैसे से लेके विदेश सेटल होने तक और गाड़ी घर के ऑफर दिए हैं वो मेरे हरियाणा फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, जो कि एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। उनकी ऑलरेडी सारी डिटेल्स मैं इन्वेस्टिगेशन टीम में दे चुकी हूँ। उनका फोन भी सीज किया गया था और उनके फोन से भी वो सारी रिकॉर्डिंग, सारे फैक्ट्स हमारी चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को कलेक्ट करते हुए वो सारे एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए हैं और हमारी माननीय अदालत में दिए गए हैं। और मैं बातें बड़ी बड़ी बिल्कुल नहीं करती। जिस हिसाब से ये लोग आके बार बार ये बोलते हैं कि अपोजिशन करवा रही है, ये कर, तो मैं आज आपको बता देती हूँ, मैं बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर हैं, वो एक प्रिंसिपल हैं और उन्होंने काफी अपनी इतने हायर लेवल पे उन्होंने गवर्नर जी से भी अवार्ड लिए हैं। उन्होंने सिर्फ हमें तहजीब में सभ्यता सिखाई है। और मेरे साथ आप देख सकती हैं, रेसलर थे, उनका मैटर दिल्ली में था, उनके साथ हर अपोजिशन के बड़े नेता थे।
लेकिन पिछले 10 महीने में जब ये इशू शुरू हुआ था, संदीप सिंह ने मुझे मोलेस्ट करने की बार-बार कोशिश की और मैंने क्लियरली हमेशा उन्हें डे फर्स्ट से डिनाई किया है। तब से मैंने हर बीजेपी के नेता के पास मैं गई, चाहे वो डिप्टी सीएम थे, अनिल विज सर थे, सीएम थे या हरियाणा के डीजीपी थे। मैंने हर एक इंसान को मैंने हर हिसाब से कोशिशें की, चाहे उसमें मेरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो भी हायर अथॉरिटीज के ऑफिसर थे। तो ये देखिए, फर्स्ट डे से किसी ने उस 10 महीने में मेरी मदद नहीं की और उन सब लोगों ने संदीप सिंह को बताया कि मैं ऐसे-ऐसे उनके खिलाफ उनके पास गई हूँ। और बस वो सब चीजें मैंने चंडीगढ़ की चार्जशीट में मेंशन की थी। मेरे हर बयान सेम है जो मैंने फर्स्ट डे दिए थे और उन्हीं मेरे सारे जितनी भी मेरे स्टेटमेंट थी उनके तहत हमारी चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने सारे वो एविडेंस एविडेंस कलेक्ट करते हुए हमारी माननीय अदालत में दिए हैं। और इनके बोलने से ये कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि आई थिंक मैंने जितना ये 8 महीने से सफर किया है, इन लोगों का मुझे ये समझ नहीं आता, इनको आज क्या परेशानी है मुझसे। उस 10 महीने में इन्होंने कभी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। अगर ये कोई पॉलिटिकली एजेंडा होता, तो देखिए आज वो पॉलिटिशियंस कहाँ हैं? दर-दर मैं 8 महीने से ठोकरें खा रही हूँ। मीडिया इस टाइप के लोग हैं, मेरा इंटरव्यू ले जाते हैं, कहीं मेरी कोई खबर नहीं चलाता है। तो ये देखिए, मैं सिर्फ मेरे संस्कार हैं। हाँ, मेरे पेरेंट्स को मेरे पे इतना विश्वास है, वो मेरे सामने खड़े हुए हैं और साथ ही उनकी तरह काफ़ी आम जनता के लोग हैं, जो पहले दिन से अपनी बेटी पे विश्वास किए हुए हैं। अदरवाइज़ मैम, पूरी बीजेपी सरकार ने हर एक वो चीज़ की है मेरे मेरे लिए, कि जैसे कि हरियाणा में मेरा मैटर ना होते हुए भी पूरे प्रॉपर तरीके से जो प्रशांत अग्रवाल डीजीपी जो अभी रिसेंटली अभी रिटायर हुए हैं, उनको सीएम और संदीप सिंह ने खुद एक सिट गठित करवाई है संदीप सिंह के बोलने पे। जब मेरी वहां पे कंप्लेंट है ही नहीं, तो किस बिहाफ पे उन्होंने सिट और एफएफसी गठित की? मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज, मेरे फ्रेंड्स, मेरी पर्सनल लाइफ में इस हद तक ये लोग घुसे हुए हैं कि मुझे टॉर्चर करते रहे, ब्लैकमेल करते रहे। साथ ही हर उस जगह पे जाते हैं कि इसके कैरेक्टर पे गंदगी उछालो। ये कैरेक्टर, जब उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला, तो क्यों वो फेल कैसे हो गए? अगर मैं अपोजिशन के साथ ये जैसी चीजें कर रहे हैं, कोई एक सबूत लेके आए। मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली की लड़की हूँ और मैंने बहुत जिंदगी में मेहनत की है। अगर मुझे गलत तरीके की इसी टाइप की चीजें करनी होती, तो आज मैं 2 ओलंपिक खेल चुकी होती। मैंने हमेशा अपने आप को नुकसान में रखा है, बिकॉज़ मैं वो लड़की नहीं हूँ कि मैं इस टाइप के काम करूँ। और संदीप सिंह को किस बात का गुस्सा है? आज तक वो अपनी किसी स्टेटमेंट पे नहीं टिके हैं। उन्होंने 2 बारी मेरे पे रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की और मैंने हमेशा उन्हें क्लियरली डिनाई बोला है। ये वन साइड चीजें थी, तो मुझे समझ में नहीं आता इतना क्या मेल ईगो है। एक एक वो दरिंदा है जिसने बार-बार मुझे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मेरे ऑफिस टाइम पे, मेरे बीइंग ए प्लेयर, मेरी ट्रेनिंग में डिस्टर्बेंस करवाते हुए हमेशा मुझे टॉर्चर करते थे। ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट करवाते थे कि जिससे मैं चल के उनके पास जाऊँ। 28 दिसंबर को भी मैं इनसे मिलने गई और उसी दिन मैं अनिल विज सर से मिली और उस टाइम ये मुझे बोल रहे हैं कि मेरी बातें मान ले, अदरवाइज तेरा जीना हराम कर दूंगा। वो सारे फैक्ट मैंने चंडीगढ़ पुलिस को दिए हैं। मेरे पास हर वो पुख्ता सबूत थे पहले दिन से, जो कि हमारी चंडीगढ़ इन्वेस्टिगेशन टीम ने सारे कलेक्ट करते हुए माननीय अदालत में दिए हैं। जी। तो शिक्षा, मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सवाल पूछूंगी जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जी। अगर आप पे ये मोलेस्टेशन स्लैश रेप अटेम्प्ट जून में हुआ, तो आप दिसंबर में पुलिस कंप्लेन क्यों कराने गई? प्लस चार्जशीट ये कह जी। रही है कि ऐसा लगता है, चार्जशीट कह रही है कि आप में और संदीप सिंह में एक तरह की दोस्ती थी। दोस्ती, उन्होंने फ्रेंडशिप का वर्ड यूज किया है। तो इसमें कितनी जी। सच्चाई है? और अगेन वो जी। सवाल कि 6 महीने बाद आप एफआईआर क्यों लॉन्च करवाने गए? जी। जी। एक्चुअली मैम ये हुआ था कि ये 6 महीने, ये मुझे नहीं पता ये कैसे लग रहा है ये, लेकिन पिछला साल जैसे ही संदीप सिंह फ़रवरी 22 में मेरे कॉन्टैक्ट में आए, उस टाइम से लेके टिल अभी रिसेंटली मैंने जो एफआईआर की है, इस पूरे टाइम के बिटवीन कोई सिंगल डे, हफ्ता ऐसा नहीं गया जब संदीप सिंह ने हर दिन कोशिश नहीं की है। वो कंटिन्यू मुझे टॉर्चर करते रहे, करते रहे, करते रहे। और मेरा उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, ये मैं क्लियरली कर देती हूँ। हाँ, एक मिनिस्टर है और मैं यहाँ पे सिर्फ एक एथलीट थी। वो भी सिर्फ एक नेशनल एथलीट, छोटे-मोटे इंटरनेशनल पार्टिसिपेट मैंने किए हैं, लेकिन मैं आई एम नॉट द बिगेस्ट सेलिब्रिटी। तो मेरी एज़ ए मंत्री वो इतना ज़्यादा जब चीज़ों में थे, तो मैंने उन्हें हमेशा प्रोफेशनली और बीइंग ए एथलीट उनको उतना ही रिस्पॉन्ड किया है। उसमें ना ही तो कोई रिलेशन शो होता है, मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं था। और ये मैंने जुलाई में इन्होंने रेप अटेम्प्ट किया है, उसके बाद भी कंटिन्यू ये जिम में आते थे, मुझे स्टॉक करते थे, बार-बार मेरी ट्रेनिंग रुकवाते थे और ये एक ट्रांसफर का तो एक बेसिक बहाना बना रहे हैं। ट्रांसफर वाले दिन भी इन्होंने, वो एक रीज़न था, क्योंकि मैं सिर्फ अकेली उस ओएसडी पॉलिसी की वो एथलीट हूँ,
सब एथलीट्स को इन्होंने उनकी मर्जी और उनकी कंफर्टेबल जोन उनके ट्रेनिंग सेंटर के अकॉर्डिंग सेंटर दिए, लेकिन सिर्फ इन्होंने हमेशा मेरी हर चीज में पर्सनल इंटरेस्ट रखा। वो एक हॉकी प्लेयर थे, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैं एक जूनियर कोच हूँ, मुझे डायरेक्टली अगर कोई हैंडल करेंगे तो मेरे ऑफिसर डायरेक्टरेट थे, बट ये मेरी हर चीज में पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे, मेरी प्रैक्टिस रुकवा देते थे, बार बार ट्रेनिंग डिस्टरबेंस। इवन मैं फॉरेन जिस फेडरेशन के लेटर पे मैं अपना पर्सनल ट्रेनिंग पहले भी गई हूँ बाहर, मेरी ट्रेनिंग कैंसिल करवा देते हैं, और इनका जो स्टाफ है वो हर बात पे बोलता है कि संदीप सिंह से मैं घर पे जाके मिलूं। तो जुलाई में ये कोई ऐसा लास्ट इंसिडेंस नहीं था, ये कंटिन्यू चीजें रही हैं, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, दिसंबर में भी, और 28 दिसंबर को लास्ट हो चुका था, क्योंकि मेरा पिछला भी 10 महीने इसने पूरे बर्बाद कराए। अब मेरा करियर ऑलरेडी मैं पीक पे चल रही थी। तो मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जुलाई में इंसिडेंस हुआ, 28 दिसंबर को वही तीसरी बार इसने वही हरकत की है कि या तो मेरी बातें मान ले, अदरवाइज ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में तेरा ट्रांसफर रहेगा, जहां पे ना 100 मीटर का ग्राउंड है, जहां पे एक एथलीट उस लेवल पे उस टाइमिंग्स की एथलीट ट्रेनिंग करने में उसको काफी दिक्कतें हैं। इन्होंने मुझे खुला ऑफर दिया कि गुड़गांव मेरे साथ रहोगी, वहीं तुम्हारा रहना खाना पीना हर चीज मैं करूंगा, अदरवाइज लिख के दो अगर यहाँ प्रैक्टिस करनी है तो कि एशियन गेम में गोल्ड लेके आओगी तो यहाँ ट्रेनिंग करो, इनकेस तुम्हारा मेडल नहीं आता है तो तुम जो मैं बोलूंगा वो करोगी। तो मैम इसने हमेशा हर वो संभव कोशिश की है, फिजिकली, इमोशनली टॉर्चर कर करके, कि मैं उसका ये मानना है कि कोई लड़की से मैंने उसको ना कैसे कर दिया। ये मुझे बोलता था कि मुझे किसी ने ना नहीं किया है, तो मैम उसकी ईगो इस हद तक हर्ट थी कि एक नॉर्मल सी लड़की तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही है। और जो जुलाई के इंसिडेंट्स में जो उसने थप्पड़ खाया है, उसके बाद इसने प्यार से नहीं, इसने हमेशा मुझे टॉर्चर किया है, मुझे डिस्टर्ब किया है। हमारे हायर अथॉरिटीज के ऑफिसर के लिए ये काफी गलत गलत बातें बोलता था कि उसने मुझे फोन करके आपके लिए ऐसे बोला है, जबकि जो आज फैक्ट सामने आए हैं उसमें खुल के सारी चीजें आ चुकी हैं। तो उसने हमेशा सर्कमस्टेंस बनाए पूरा टाइम कंटिन्यू मुझे परेशान करने के लिए। जी। तो शिक्षा में मेरा आखिरी सवाल, लड़ाई जहां तक मुझे दिख रहा है लंबी चलेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ठान ली है कि संदीप सिंह इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बार बार वो यही बोलते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कब तक आपको लगता है आप ये लड़ाई लड़ सकेंगे, क्योंकि एक बहुत पावरफुल इंसान ही के खिलाफ नहीं, एक बहुत पावरफुल गवर्नमेंट के खिलाफ भी आप ये लड़ाई लड़ रही हैं। देखिए, ऐसा दुष्कर्म कभी पावरफुल नहीं हो सकता। मैं संदीप सिंह जैसा दरिंदा और गिरा हुआ इंसान किसी को नहीं समझती। रही बात सरकार की, तो जो मुख्यमंत्री आज इसको पूरा हुक एंड बाय हुक इसके लिए सब चीजें कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होने वाला है। रही बात लड़ाई की, तो अब तक मैंने जितना मेरा बुरा दौर था, कहीं ना कहीं मुझे अब राहत मिली है, क्योंकि अब मैटर मेरे देश की माननीय अदालत में है। एंड आई ट्रूली बिलीव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन आवर लॉ सिस्टम। और डेफिनेटली जब इतने प्रेशर के अंदर हमारी माननीय चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने, आज भी देखिए काफी आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी वर्दी की, यूनिफॉर्म की इज्जत रखी है, जो हमारे देश के संविधान और हमारे तिरंगे के लिए दिल में इज्जत रखते हैं। अदरवाइज इतना प्रेशर होने के बाद भले ही चंडीगढ़ पुलिस ने 376, 511 अटेम्प्ट टू रेप के एक्ट इसमें नहीं लगाए, बट जो सच था, जो ट्रुथ थी, वो मेरे एविडेंस के तहत, जैसी मेरी फर्स्ट डे से स्टेटमेंट रही है, चाहे मेरे 160, 161, 164 के जो भी मेरी स्टेटमेंट थी, उनके तहत हर वो चीज वो रिट्रीव कर चुके हैं, और सच्चाई से ऊपर कुछ नहीं है। और मेरे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो अच्छाई और सच्चाई के लिए काम करते हैं, और इंसाफ मुझे मिलेगा। इसका इस्तीफा बेशक ये सरकार ना ले, पूरे बीजेपी सरकार को आज मैं चैलेंज करती हूँ, जितना जो करना है कर ले संदीप सिंह के लिए। मेरे देश की कानून के सामने किसी भी बदमाश नेता की और जो कानून तोड़ने वाले लोग उनकी किसी की कोई औकात नहीं है। इंसाफ भी मिलेगा। और आज इस नेशनल टीवी पे मैं आज जो बोल रही हूँ, इन चीजों में हर वो देश की हर वो महिला, हर वो औरत मेरे पे फक्र करेगी। और मैं बिल्कुल कहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोली। आज मुझे पूरा विश्वास है कि इस इन्वेस्टिगेशन में चंडीगढ़ पुलिस ने मुझ में इतनी हिम्मत डाल दी है कि एक्चुअल में मूवीज में दिखाते हैं देश में आज भी सुपर हीरो हैं, लेकिन मुझे काफी डर था क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा था बीजेपी गवर्नमेंट का। मेरी चार्जशीट देने में उन्होंने काफी टाइम लिया, बट आई एम ग्रेटफुल। और मैं सल्यूट करती हूँ उन लॉयल ईमानदार जो ऑफिसर्स हैं जो आज भी हमारे तिरंगे के लिए अपनी वर्दी की इज्जत रखते हैं। जी, थैंक यू सो मच। चलिए, शिक्षा डागर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर टेलिंग अस योर स्टोरी। Thank you. My guest this evening, Professor Vidhu Rawal, spokesperson of the Haryana BJP. Abha Singh is a lawyer and an activist, and Advocate Mahima Singh is spokesperson of the Congress Party. Thank you all
three very much for joining us. Mr. Rawal, Professor Rawal, you were with us yesterday as well. You made things personal yesterday. I hope we can have a civilized discussion today. I just want you to react to what the young coach, एक मिनट रुक जाइए, of what the young coach has just told us over the last 15 minutes. Just react to that. ये पीड़िता ने अपने तरीके से अपनी एलिगेशंस को दोबारा से लगाया है। कुछ नई भी चीजें जो अब तक नहीं लगाई थी वो भी उन्होंने उन बातों का जिक्र किया है। पीड़िता जो है जिन्होंने एक्यूज किया है उसको लेकर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब पीड़िता खुद कह रही हैं कि चंडीगढ़ पुलिस ने उनके भीतर विश्वास जगाया है कि उनको न्याय मिलेगा। तो लेट अस होप कि उनका ये विश्वास बरकरार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय पर उनको पूरा विश्वास है। मुझे नहीं पता उसके बावजूद भी उन्होंने बार बार इस प्रकार की एक्सप्रेशंस क्यों रेज की थी कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस अच्छा काम कर रही है ऐसा उन्होंने बताया, बल्कि उन्होंने कहा पुलिस ने उनके भीतर विश्वास जताया है। दैट मीन्स कि पुलिस इज डूइंग अ फेयर जॉब। ठीक है, अब तक तो था हमारे ओपोजिशन पार्टीज ये कह रही थी पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस काम नहीं कर रही, इन्वेस्टिगेटिंग टीम काम नहीं कर रही है। तो वो एक बार जो है दैट इज आउट ऑफ द विंडो नाउ, पहली बात। दूसरी बात, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट्स पर उनको पूरा विश्वास है, हमें भी कोर्ट्स पर पूरा विश्वास है और हम चाहते हैं कि अगर उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, जिस मैग्नीट्यूड में वो एलिगेशंस लगा रही हैं उतनी भी नहीं, उससे कम भी कुछ हुआ है, तो भी न्याय मिलने के वो अधिकारी हैं। इस देश का संविधान ये सुनिश्चित करता है कि उनको न्याय मिलेगा। अभी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने कही हैं मैं ठीक नहीं मानता हूं, क्योंकि मामला न्यायाधीन है। अगर आप मुझे फोर्स करेंगी तो मैं एक एक कर उनकी बातों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक नहीं कही थी, अब वो कह रही हैं। बहुत सारी चीजें अब मिसमैच भी हो रही हैं। वैसे अगर बताऊं तो मैं मिसमैच, और मैं आपको भी कांग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि आपने भी बहुत, मुझे लगा कि क्योंकि यू हैव मेड अप योर माइंड कि संदीप सिंह इज गिल्टी, आपने पहले से बना लिया है मन। इसके बावजूद भी आप जो सवाल पूछ रही थी उन सवालों में धार थी। उन्होंने बार बार ये कहा कि आपने पूछा कि जून में मिली थी, उन्होंने कहा नहीं जून नहीं, जुलाई में जो है मेरे पर रेप का अटेम्प्ट हुआ था, और उसके बाद जिम में मुझे स्टॉक करते रहे, उसके बाद बुलाते रहे। फिर उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर को मैं लास्ट टाइम जो है घर पर मिलने गई थी। और क्यों मिलने गई थी? इसलिए गई थी जो कि उन्होंने अपनी कंप्लेन, फॉर्मल कंप्लेन में उन्होंने बताया है। श्रेया, अगर आप चाहेंगी तो मैं इसको पूरा जो है पिक्चर को क्लियर कर सकता हूं, अगर आप चाहें। नहीं प्रोफेसर रावल अभी रुक जाइए, क्योंकि मेरे पास और गेस्ट भी हैं। अरे हाँ, अब मेरे पास और गेस्ट भी हैं, लेकिन कल भी मैंने आपसे ये बात बोली थी और आज भी मैं आपसे बात बोलूंगी और अपने व्यूअर्स से भी ये बात बोलूंगी कि यू हैव एवरी राइट इन अ डेमोक्रेसी टू अक्यूज मी ऑफ मेकिंग अप माई माइंड, बट if you say I have made up my mind that Sandeep Singh is guilty, then the Haryana government has made up its mind that the Haryana, then Professor Rawal, मैंने आपको बात बोलने दी। देखिए, अच्छा चलो, मैं नहीं, आप क्लियर कर दीजिए, हो सकता है मुझे मिसकंसेप्शन प्रोफेसर रावल क्लियर कर दीजिए। हैव यू नॉट प्रोफेसर, ठीक है, यस और नो? अच्छा आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? अब रुक जाइए, डोंट हैकल मी, डोंट हैकल मी, मैं जवाब दे रही हूँ। अरे गलती लग सकती है मुझे भी, आप तो मैं जवाब दे रही हूँ। Have you not made up your mind कि संदीप सिंह इज गिल्टी? आप यस और नो? सिंपल, आगे बताइए। प्रोफेसर रावल देखिए, यस और नो नहीं, आप प्रोफेसर रावल heckling me and bullying me will not, Professor Raval, heckling me will not help. Your other guest, you heckling me will not help. वो समझ आ गया दर्शक। Yes, दर्शकों को आपने बता दिया, right? Professor Raval, two things. Now two things. I've heard you. I didn't want to raise my voice today. I've heard you. भाई आप प्रोफेसर रावल, आई नेवर डू दिस। मैं किसी भी गेस्ट की ना आवाज कम नहीं करती, मुझे लगता है वो गेस्ट की बेइज्जती होती है। आप एक ऑनर्ड गेस्ट हैं, लेकिन आपने सवाल पूछा तो सुन लीजिए और हैकल मत कीजिएगा मुझे, क्योंकि आज मैं चिल्लाना नहीं चाहती। प्रोफेसर रावल, सबसे पहले, इफ यू हर्ड माय इंट्रोडक्शन टुडे, आई वेरी क्लियरली सेड दैट वी आर नॉट द जज, jury and executioner. Obviously, it is a court of law that will decide whether Sandeep Singh is guilty or not. But the fact is that the Haryana government has already made up its mind that he's not guilty, which is why he continues to be a minister in the government of Haryana, and the woman has been suspended. है ना? ये तो fact है, right? मैं कुछ झूठ तो बोल नहीं रही। Sandeep Singh continues to be a minister, and but what I'm saying is factual. Sandeep Singh continues to be a minister, and the girl has been suspended anyhow. हो गया, ठीक है, लड़की पे कार्रवाई हो गई, लेकिन मिनिस्टर पे कार्रवाई नहीं होगी।
बिकॉज लड़की पे कार्रवाई हो गई लेकिन मिनिस्टर पे कार्रवाई नहीं होगी ना। नहीं गर्ल किस लिए आभा सिंह जस्ट कम इन हियर, ठीक है, ठीक, नहीं, हो गया, बहुत हो गया। बुलिंग विल नॉट हेल्प, raising your voice, heckling and bullying will not help. I don't take well to it. I've told you, I don't reduce the volume of any guest, and I do not want one guest to hijack the show. I have heard you, I have answered to you, now stop. नहीं, सब कुछ आपको पता है। नहीं, होमवर्क तो सारा आपने किया था ना, कल चार्टशीट का पहला पन्ना नहीं पढ़ा था। आभा सिंह, you're a lawyer and an activist. Don't get personal. Today, I just want to listen to everyone. Don't get personal. I told you that was your problem yesterday. I thought you would learn some manners and come. Anyhow, Abha Singh, lawyer and activist, please. Acha, ठीक है. No, I have not thrown anything at you. I've just asked you a question. But Abha Singh, please go ahead. If he shouts, he'll be called again and again. So, Professor Rawal, let's not shout, but come with facts. Has Sandeep Singh not committed an offense? Okay. Abha Singh, can I take 1 minute? Abha Singh, can I take a minute? Can I take a minute? Please, I don't want to interrupt you. I want to take a minute. I just want to say that no one from the Haryana BJP or the BJP wants to assign a spokesperson for this story. That's a fact, ladies and gentlemen. I just have to clear it here. This is not a reflection on Professor Rawal. I thank you. I know that. I know that. Which is why you're here. We asked the central BJP to send a spokesperson. They didn't. We asked the, अरे भैया आप सुन लीजिए ना, आप हर चीज पे चढ़ के मत बैठ जाइए, सुन लीजिए। और हमने भारतीय जनता पार्टी सेंटर से पूछा था कि कोई भेज दीजिए। No, I'm not making a mockery of myself. You are making a mockery of yourself. I know that, Mr. Rawal. अरे Mr. Rawal, आप अपना please can we please just reduce Mr. Rawal's volume? आप सुन लीजिए. Can we just so Mr. Rawal, before screaming and shouting, just look at your screen. Just look at your screen and just look at what we are saying. We are calling you the official spokesperson of the Haryana BJP. At least listen to the point I'm trying to make. We tried to get a central spokesperson to speak on the matter. No one was allocated. That's the limited point I was making. सुन लिया आपने, अब अपना स्क्रीन भी देख लीजिए, एक बार दोबारा दिखा दीजिए भाई प्रोफेसर रावल को स्क्रीन, और उनका एस्टन क्या जा रहा है उनको दिखा दीजिए। प्रोफेसर रावल जरा देख लीजिए अच्छे से आप, और शांत हो जाइए। आभा सिंह, प्लीज गो अहेड, सॉरी टू इंटरप्ट यू। You know, the issue here is that there are charge sheet at least accepts. It says that the girl went to the minister's office, she went to the bedroom, whatever she has said, there is now corroborated by the charge sheet. So this shows that the girl was not telling lies, and now suspending her. This is not the first time. Let me tell you, women who have spoken up against their bosses, who've spoken up against the ministers, they get terminated, they lose their job. And that is the reason Me Too movement in India failed, because they did not get the support. And this is the election year, and that is why the minister is being supported by the ruling BJP in Haryana, because they have to fight elections. But I'm shocked that when you talk of women's safety, but for you, winning election is everything. Let me tell you, the women of this country are not going to forgive, not going to forget, and you will see in the coming elections that women will not come and vote for such ministers, such molesters. Advocate Mahima Singh, this is such terrible optics. Why, in your view, has Mr. Sandeep Singh not been sacked? I'm not saying jail him. There is a due process which needs to be followed. And a pre-trial arrest is criminal. The Supreme Court has told us it's not okay to do that. So I'm not saying arrest him, put him behind bars, etc. But how can a person, a sports minister, accused of stalking, harassing, and attempting to rape a young coach still find place in the Haryana cabinet? All right, he's not the sports minister. He's saying he stepped down on moral grounds. Moral grounds? But that's nothing new to the BJP, Shreya. We all know that the BJP gives tickets to history cheaters. They have the most corrupt ministers across the country. They have most number of MPs and MLAs with crime records against women.
And yet, you see, they have the confidence. Brij Bhushan Sharan Singh has the confidence of pushing a journalist to the ground. I think that was a Times Now journalist only, if I remember correctly, almost 2 months back, and we debated on that as well. And I think we saw something similar on your channel right now, and I feel very sorry for the state of moral values and ethics in the BJP. They just do not know how to conduct themselves, and it is very unbecoming. Now coming to the point, you see the charge sheet, a 700-page charge sheet wherein 45 witnesses have been testified, has actually proven the point that the reality is far from fiction, the fiction that was narrated by the BJP minister in Haryana, who first actually, sort of projected that he is resigning, but then the chief minister came back and he said, we will not accept this resignation. He changed his, portfolio. And then on the House of the Legislative Assembly, the opposition challenged the government and told them that, he ought to resign, he ought to step down. He cannot be a minister in the cabinet. Doesn't send out a good message, because just imagine the state of, thoughts in a girl's parents in Haryana today, who sees that such a person is a minister, such a person holds a powerful office in the cabinet. But you see, we remember Ajay Mishra Teni's case. We know what has been happening with Brij Bhushan Sharan Singh. Now, 45 witnesses, out of whom most have actually testified the victim's case. I was hearing the victim on your channel, and kudos to her, because she chose to come out and she chose to speak in spite of the amount of threats that she's facing day in, day out. But just this evening, Shreya, I was reading, a controversial statement by the Chief Minister of Haryana that came out just today. A woman was asking for employment from the Chief Minister of Haryana, and he said, "Agli baar tumhe Chandrayaan 4 par bhej denge," because she was asking for employment. So you see, belittling of women, intimidation of women is nothing new to the BJP. What Sandeep Singh has done will be testified, will be tried by the courts of law. At the end of the day, the narrative of the BJP is, innocent until proven guilty. All right, that is the rule of law. But you see, the charge sheet speaks for itself, and I think it is high time that the government took some responsibility, that the government showed some accountability and answerability instead of conducting themselves in such a brazen manner. That would at least instill some, some speck of faith in the government, in the women of Haryana. Okay. We'll leave it there for the moment. Mahima Singh, thank you very much for joining us. Ava Singh, thank you very much for joining us. And Professor Rawal, thank you very much for joining us. Please see your assistant once again, so that you don't accuse us of misleading our viewers. Again, we've put out the view, we've put out the voice of the victim. Ek minute, khatam, show khatam. Good night, good night. Good night, I know that. Wo to kar diya, good night, ho gaya. We've put out the voice and the version of the victim. There is a 700 charge sheet that is present in the public domain now. You have heard from the BJP as well. We tried to reach out to Sandeep Singh for his version. He has chosen not to speak on the issue. So I'm sending out an open invite to him. If he is watching this broadcast, or if Mr. Rawal can convey this to him, we would like to speak to Sandeep Singh as well. We would like him to come to the show and answer some questions from us, just as the victim has. If he has nothing to hide, he should be open to answering questions. For the moment, that is where the case stands. What is shameful is that the Haryana government continues to protect the minister, but has decided to penalize and punish the victim. That is where the story stands so far. We'll leave it there, but this is a story we will continue to track.